الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط إلا بالله العلي العظيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام التحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق. صلوات پڑھیں محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ عشرت جہاں بنت احمد علی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، سوم کی مجلس ہے اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ ایک نئے مطلب کی جانب اشارہ کیا جائے تاکہ مومنین کے ایمان میں اور ان کے بصیرت میں اضافہ ہو. میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ جو سورہ یاسین سے متعلق ہے وہ ہم نے پڑھی ہے آپ کی خدمت میں، اور اس میں اللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. بہت ہی اہم ہے اس میں جو چیز ہے، میسج ہے کہ موت اور حیات کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کسی بھی فرد کو کہ وہ اپنی مدت حیات کا کسی کو علم نہیں ہے. مدت حیات کا علم کسی کو نہیں ہے کہ کتنا دن وہ جیے گا، کب تک وہ رہے گا، کب تک وہ سانسیں لے گا اور کب تک اس کی حیات ہے. یہ مدت حیات کو پروردگار عالم نے چھپایا ہے. اگر یہ پاسبل ہوتا یا ممکن ہوتا یا اللہ کی رحمت اور اس سے مصلحت اور اس کی حکمت، اس کی مشیت متقاضی ہوتی اس بات کی کہ ہر انسان کو اس کے علم میں یہ ڈال دیا جاتا، اس کے ذہن میں ڈال دیا جاتا، اس کو یہ کہہ دیا جاتا کہ بھئی تم دنیا میں جا رہے ہو، تم کو اتنا جینا ہے. مثلا ہمیں اللہ کہہ دیتا کہ بھئی تمہاری عمر 50 سال ہے، تم 50 سال تک رہو گے، 50واں سال جب ہوگا تمہارا تم ختم ہو جاؤ گے، تمہیں میری بارگاہ میں واپس آنا ہے. ہر ایک کو اس کا علم، کوئی 80 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، سب کو اس کا ایج، اگر عمر مدت حیات کو اللہ بتا دیتا تو اس کا نقصان کیا ہوتا. خدا کی قسم اللہ نے ہماری مدت حیات کو جو چھپایا ہے اس میں بھی ایک رحمت ہے، اور رحمت اس انداز سے ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا علم ہو جاتا کہ فلاں دن، فلاں موقع پر، فلاں جگہ پر مجھے موت آئے گی، تو ایک لمحہ بھی اور ایک دن بھی اور ایک سانس بھی جینے کا مزہ ہمیں ملتا نہیں. انسان اسی سوچ میں گھلتا چلا جاتا، اسی سوچ میں مرتا چلا جاتا، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی کہ ہم کو فلاں ٹائم مرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہاسپٹل میں کسی کو بہت کریٹیکل معاملہ ہوتا ہے اور ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے کہ فلاں وقت میں مرنا ہے اس کو، تو کیا کیفیت ہوتی رشتہ داروں کی، کیا کیفیت ہوتی اس کی جو مرنے والا ہوتا ہے.
تو یہ اللہ نے مدت حیات کو جو بندوں سے چھپا لیا، یہ مدت حیات کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ انسان جی سکے۔ اب اس کی مشیت اور قضاء و قدر الہی میں ہے کہ کب انسان مرے گا، اور اگر اللہ یہ بتا دیتا کہ تمہیں فلاں وقت مرنا ہے تو انسان کے اندر سے حوصلہ، ہمت اور عمل کا جذبہ ختم ہو جاتا۔ لہٰذا اللہ نے مدت حیات کو چھپا کر انسان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا کر دیا۔ غور فرما رہے؟ صلوات پڑھے محمد۔ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں 2-3 پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں موت کے حوالے سے، جس میں لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ، اور یہ حکمت ہے، بصیرت ہے، میسیج ہے جو ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ اس لیے کہ موت اور حیات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر ہم موت سے اس قدر غافل ہے، اور جو یقینی چیز ہے اس میں اتنے شک میں ہم مبتلا ہو گئے۔ جیسے مولا نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے، موت ایسی یقینی چیز ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، مگر لوگوں کے درمیان موت ایسا شک بن گیا ہے کہ لوگ غافل ہو گئے موت سے، اور شک ہی داخل ہو گیا موت میں، یعنی یقین ختم ہو گیا۔ تو مولا نے فرمایا کہ موت یقینی شے ہے، مگر لوگوں کا شک، لوگوں کی غفلت، موت سے لوگوں کا غافل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کے اندر وہ یقین پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو موت تو آنا ہے، جانا ہے ہر ایک کو، انسان کو، لیکن یہ نہیں ہے کہ کون جائے گا، بوڑھا جائے گا، جوان نہیں جائے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مدت حیات اللہ کے اختیار میں۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ بتاؤں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام نے ایک حدیث میں، اس میں مثبت پہلو پر غور کیجیے گا اور حوصلہ اپنے دل میں رکھیے گا کہ میرا ایج ایسا ہو گیا تو پھر اب کیا ہوگا۔ اس میں مثبت پہلو ہے جو چھٹے امام نے فرمایا کہ جب بندہ 30 سال کا ہوتا ہے، جب بندہ 33 سال کا ہو جاتا ہے تو گویا وہ اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنی توانائی کے بالکل عروج پر ہوتا ہے، اور جب 40 سال کا ہوتا ہے تو توانائی، عروج اور جوانی اور شباب اور جذبات کا پورا انتہا، تکمیل کا مرحلہ 40 سال کا ہوتا ہے، یعنی 40 سال کا جب پہنچ جاتا ہے مکمل عروج پر ہوتا ہے انسان 40 سال کی عمر میں۔ اور جب 41واں سال آتا ہے تو اس کے اندر جو ہے گھٹنا شروع ہوتا ہے، وہ طاقت اور توانائی ختم ہوتی ہے، اور اس جو ہے گھٹنا شروع ہوتا ہے، پھر اس میں رشد و نمو نہیں ہے۔ اور جب 50واں سال ہوتا ہے تو انسان نزع کی حالت میں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ 50واں سال جو ہوتا ہے نا، یہ جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ نزع کی حالت میں ہوتا ہے۔ نزع کی حالت میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب انسان جو ہے حالت نزع میں ہوتا ہے، یعنی جانکنی کا عالم ہوتا ہے، تو کیسا ہوتا ہے؟ سانسیں تیز سے لیتا ہے، اس کی طاقت توانائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو 50واں سال جو ہوتا ہے وہ انسان نزع کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس میں میسیج یہ ہے کہ اگر 50 سال ہمارے ہو گئے تو ہم نزع کی حالت میں آ گئے۔ اب یہ اس بات کا انتظار نہ کرنا کہ جیسی صحت جوانی میں تھی ویسی صحت بڑھاپے میں ملے گی، ہے نا؟ وہ طاقت جو پہلے جوانی میں 40 سال یا 33 سال کی عمر میں تھی، وہ طاقت اب جو ہے 50 سال کے بعد واپس نہیں آنے والی۔ لہٰذا ہر حال میں اللہ کی عبادت کرو، اور اس بات کا انتظار نہ کرو کہ میری جوانی واپس آ جائے گی، میری صحت واپس آ جائے گی۔ 40 سال یا 50 سال کے بعد انسان کی صحت واپس نہیں آنے والی ہے اور جوانی واپس نہیں آنے والی ہے، اب تیاری کا دور ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ غور فرما رہا آپ نے؟ اب اللہ نے یہ میں نے قربتاً الی اللہ ایصال ثواب کے لیے اسے اٹھایا تھا، اور اس میں ایک آیت ہے جو میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ کر دوں تاکہ مجلس کا جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا اور مٹی ہی میں جانا ہے۔ آئے مٹی سے، بنے مٹی سے،
آئے مٹی پر اور گئے مٹی کے اندر، یہ جانا ہے مٹی کے اندر۔ ثم من نطفۃ، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور نطفے سے خلق کیا ہے۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑ جوڑ بنایا ہے، تمہارا جوڑا مقرر کیا ہے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، اور رحم مادر میں یہ جنین جو بچہ ہے وہ کیا ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے مگر اللہ کو اس کا علم ہے۔ وما يعمر من معمر، اور کوئی شخص عمر نہیں گزارتا اور اس کا اپنی عمر کا پتہ نہیں چلتا کہ کتنا اس کی عمر ہے، اس کی عمر میں کتنی برکت ہوگی، کم عمر اس کا گھٹایا جائے گا، اس کا علم نہیں ہے۔ الا فی کتاب، لوح محفوظ میں ہمارے عمر کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ وما یستوی البحران ھذا عذب فرات، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اور تمام آیتیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ما یستوی الاعمی والبصیر، جو اندھا ہے اور جو بینا ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ولا ظلمات ولا نور، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی۔ ولا ظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ یہ برابر نہیں ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور مردے اور زندے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مین پوائنٹ ہے جو میں آپ کی خدمت میں لانا چاہتا تھا۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، جو مردہ ہے اور جو زندہ ہے وہ دونوں برابر نہیں ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اور اللہ جس کی بات چاہتا ہے سنتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبر میں ہے ان کی بات تم ہرگز سن نہیں سکتے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ جو قبر میں ہیں ان کی بات تم نہیں سن سکتے۔ عام بندہ اللہ کی یعنی قبر میں جو ہے اس کی بات کوئی نہیں سن سکتا، عام بندہ نہیں سن سکتا، مگر جو اولیاء خدا ہے وہ اس کی بات قبر میں بھی سن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو تو مرنا ہے، روح قبض کرنا ہے، اللہ جو ہے وہ بلائے گا اپنی بارگاہ میں۔ ایک امپورٹنٹ سوال جو میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ اگر جواب آپ کو حاصل کرنا ہے تو ایک مرتبہ جواب کے لیے حوصلہ افزا صلوات پڑھے محمد۔ یہ آیت، یہ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور عبارت عربی عبارت کے ساتھ اور اس کا ترجمہ بہت انٹرسٹنگ ہے جو آپ کو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ مولا کائنات نے فرمایا یا حارس و حمدان، اگر ہمارے دل میں مولا کائنات کی ولایت ہے، محبت ہے، تڑپ ہے، اور ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ مولا کا دیدار ہم کریں، مولا کی زیارت ہم کریں، کوئی علی کا چاہنے والا اگر جس کے دل میں محبت ہے وہ کبھی اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ مولا کی زیارت نہ ہو، ہر انسان چاہے گا۔ تو اگر دل میں علی کی محبت ہے، ولایت علی ہے، اہل بیت کے تئیں محبت ہے، تو مومن کبھی موت سے خائف نہیں ہو سکتا۔ حقیقی مومن جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ کبھی موت سے ڈرے گا نہیں۔ کیوں موت سے ڈرے گا نہیں؟ اس لیے موت سے نہیں ڈرے گا کیونکہ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں آخری وقت میں حالت نزاع میں ہر ایک کے سرہانے موجود رہتا ہوں، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو۔ یعنی جب حالت احتضار کا وقت ہوتا ہے اور انسان آخری سانسیں گن رہا ہوتا اپنی حیات کا، تو مولا کائنات اس کے سرہانے پہنچتے ہیں، اور مومن وہ مولا کائنات کے چہرے کا دیدار کرتا ہے، اور ملک الموت روح اس کی قبض کرتا ہے، اور مومن کو روح کے قبض کرنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اور مولا نے اپنے صحابی
हारिस हमदानी को मुखातब करके फरमाया, या हारिस हमदान मैं यमुत यरनी मोमिन और काफिर। ए हारिस हमदान, जो मरता है वो मुझे ज़रूर देखता है, चाहे वो मोमिन हो चाहे वो काफिर हो। अब बात तो ये समझ में आ गई कि भाई मोमिन देखेगा, इसको दिल में अली की मोहब्बत है, मगर काफिर क्यों देखेगा? मोमिन तो देखेगा, उसका एडवांटेज है, वो मोमिन है, मगर काफिर क्यों देखेगा? तो यहाँ वजाहत और तशरीह उलमा ये करते हैं, मोमिन इसलिए देखेगा कि उसके दिल में मोहब्बत है, काफिर को इसलिए दिखाया जाएगा ताकि वो देखकर अपने हसरत और अफसोस का उसे एहसास हो कि काश हम इसकी मोहब्बत को अपनाए होते तो कभी हमें हालत इंतज़ार के वक्त और मरने के बाद तकलीफ़ का एहसास ना होता। तो मोमिन को कभी तकलीफ़ नहीं होती है। और रूह के कब्ज़ करने के सिलसिले में यह है कि रूह जब मोमिन के जिस्म से निकलती है तो ऐसे होता है जैसे रेशमी कपड़े को खारदार झाड़ियों में डाला जाए, उसे खींच लिया जाए तो उस कपड़े की कैफियत क्या होगी। बिल्कुल रूह जब निकलती है तो जिस्म से, तो जिस्म की कैफियत ऐसी होती है और इंसान जो है वो बहुत अज़ियत में मुब्तला होता है। मगर हमारे लिए हौसले और हिम्मत की बात यह है कि मौला कायनात ने फरमाया कि तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे सिरहाने ज़रूर पहुंचूंगा और मैं अपने चेहरे के नूरानी चेहरे के दीदार ज़रूर तुम्हें कराऊंगा और तुम्हें तकलीफ़ का एहसास नहीं होगा। इसीलिए हदीस में आया है कि मोमिन के जिस्म से रूह इस तरह परवास करती है जैसे फूल से खुशबू निकलती है। ये क्यों है? ये इसीलिए है कि मोमिन अली के चेहरे का दीदार कर रहा होता है और उसे अपने तकलीफ का एहसास ही नहीं होता। सलवात पढ़े मोहम्मद। अब ये सवाल है, उसे हल कर ले, फिर इंशाअल्लाह मसाइब की जानिब आ रहा है। लेकिन एक मतलब और बाबा से बुलंद एक रवायत है छठे इमाम से। छठे इमाम फरमाते हैं, काला अमीरुल मोमिनीन, ये हमारे अंदर कमी है कि हम मुर्दे को बहुत कम टाइम के लिए और बहुत कम मुर्दे को याद करते हैं, और अगर घर पे बैठ के याद करते हैं तो कब्रिस्तान की ज़ियारत जो है हमारी रोज़ाना रूटीन में शायद शामिल नहीं है। तो ये चीज़ को अपनाइए, इंशाअल्लाह इसमें बहुत बरकत है। अगर आप अपनी मशगूलियात और मसरूफियात ज़िंदगी में एक टाइम 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए निकालते हैं और अहले क़बूर की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो ये बहुत बड़ा काम है और आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा होगा और आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग आएगा, बरकतें होंगी। वो ये चीज़ बहुत अहम है। लिहाजा ईरान वगैरह में हम लोग देखते हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की हो गई है, हमारे कब्रिस्तान का जो है मेंटेन तमाम चीज़ें, अभी जाके कब्रिस्तान में बैठने का दिल करता है। तो ईरान में क्या हर रोज़ शब बारात होती है वहाँ। जैसे शब बारात के टाइम में हमारे कब्रिस्तान का क्या हाल होता है, माशाल्लाह चिरागा किया जाता है, ये किया जाता है, रौनक होती है, मोमिनीन कुरान पढ़ते हैं, जाते हैं, ज़ियारत करते हैं अहले क़बूर की। तो वो तमाम चीज़ें जो है ईरान में हर रोज़ ऐसा होता है। अब ख़ास करके शब जुमा तो ऐसा महसूस होता है जैसे शब बारात हो। और कब्रिस्तान को ईरान में और दीगर मकामात पर पार्क बना दिया गया। जैसे हम पार्क में तफरीह के लिए जाते हैं, वैसे अहले खाना और मोमिनीन जो है कब्रिस्तान में पार्क की तरह कब्रिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा कब्र में जाना गोया ऐसा नहीं है कि मुर्दा पकड़ लेगा, बल्कि कब्र में जाएंगे तो हयात और बढ़ेगी, मुर्दों की दुआएं ज़्यादा मिलेंगी, हयात में इजाफा होगा। कब्रिस्तान जब जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा होगा। और सबसे बेहतरीन हदीस में आया है, तुम्हें अगर सुकून चाहिए तो योगा करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। सुकून चाहिए तो बाबा रामदेव ने सुकून के लिए क्या नुस्खे बताए हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। सुकून अगर चाहिए तो तुम्हें एक्सरसाइज, वो तो वक्ती सुकून आपको मिलेगा, लेकिन हकीकत में खुदा की कसम अगर आप तजुर्बा आपने नहीं किया हो, और आज के बाद से इंशाअल्लाह तजुर्बा करें, जब तक आप तजुर्बा नहीं करेंगे तो आपको एहसास नहीं होगा। अगर हकीकत में आपको सुकून चाहिए तो कब्रिस्तान जाके बैठ जाना, तो आपको दिखेगा रूहानी सुकून, दिली सुकून, कल्बी सुकून अगर चाहिए तो कब्रिस्तान जाइए। लिहाजा छठे इमाम ने फरमाया, अगर आप कब्रिस्तान जाएं
फातिहा ना भी पढ़ें, वहाँ जाके आपने जो है राउंड लगाया अहले क़ुबूर को, अस्सलाम अलैका या अहलल क़ुबूर। भाई अस्सलाम अलैका या अहलल क़ुबूर क्यों है? अस्सलाम अलैका या अहलल क़ुबूर, सलाम क्या है? सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है ना। तो अहले क़ुबूर की अस्सलाम अलैका या अहलल क़ुबूर, अस्सलाम अलैका या अहल ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, अस्सलाम अलैका बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह, तमाम चीज़ें जो ज़ियारत में आप पढ़ते हैं, ज़ियारत अहले क़ुबूर अस्सलाम। मगर हम तो उस मज़हब के मानने वाले हैं जिसके पेशवा ज़िंदा हैं, जिसमें पेशवा ज़िंदा है, और उस मज़हब को मानने वाले हैं जो मज़हब हक़ है, और जिसमें जो भी हुक्म है वो फॉर्मेलिटी नहीं है, रस्म नहीं है, बल्कि हकीकत पर मबनी है। जब हम कहते हैं अस्सलाम अहलल क़ुबूर, तो अहले क़ुबूर की तरफ से हमें जवाब भी मिलता है। वो अलग बात है कि जब जवाब देते हैं तो हम सुन नहीं पाते, वरना तलक़ीन का भी यही मसला है। तो कब्रस्तान अगर हम जाएं तो क्या करना है जनाब, क्या होगा फ़ायदा? कह रहे ज़ूरू अमवातकुम, अपने मुर्दों को याद करो, उन कब्रस्तान में जाओ, अहले क़ब्र की ज़ियारत करो। फ़इन्नहुम, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहम बात है, फ़इन्नहुम यफ़रहूना बिज़ियारतिकुम, जब तुम अहले क़ब्र की ज़ियारत के लिए जाते हो तो तुम्हारी ज़ियारत से उनकी रूह को खुशी मिलती है, वो खुश होते हैं। वले यतलब अहदकुम हाजतहु, छठे इमाम फरमाते हैं अगर तुम्हें कोई हाजत हो, अगर कोई परेशानी हो, अगर कोई तसब्जुब के शिकार अपनी ज़िंदगी में हो, फ़ैसला लेना मुमकिन ना हो, परेशान अगर हो, ज़हनी तौर पर, क़ल्बी तौर पर, फ़िक्री तौर पर, इक़्तिसादी परेशानी हो, इल्मी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो छठे इमाम फरमाते हैं वलयतलब अहदकुम हाजतहु इंदा क़ब्र अबी व इंदा क़ब्र उम्मिही। अल्लाहु अकबर। अगर हाजत हो तो उसे चाहिए कि कब्र में जाए, अपने बाप के कब्र से तवस्सुल करे और अपनी माँ के कब्र से तवस्सुल करे, अल्लाह इनकी बरकत से तुम्हारी हाजत रवाई ज़रूर करेगा। क्या बात है, इसमें क्या है मुझे नहीं मालूम, मगर अज़ीज़ान गिरामी ज़िंदों की दुआएं लेना तो बहुत आसान है, मगर मुर्दों की दुआएं लेना बहुत मुश्किल है। और मुर्दों की दुआएं उसी वक्त मिल सकती है जब हम उनकी ज़ियारत के लिए जाते हैं, उनके लिए हदिया ईसाल सवाब करते हैं, हदिया खैरात करते हैं, इन्फाक करते हैं। तो जब इन्फाक करते हैं तो मुर्दों की दुआएं हमारे शामिल हाल होती हैं। तो ज़िंदों की दुआओं में ये मुमकिन है कि कबूल हो या ना हो, मगर मुर्दों की दुआएं इस बात की ज़मानत है कि वो ज़रूर मुस्तजाब होती है, कभी अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं होती। अब सवाल है, वो सवाल क्या है, ये सवाल को मैं हल कर लूँ इंशाअल्लाह आपकी ज़हमत तमाम। सवाल ये है, कभी आपने इस पर गौर नहीं किया है कि मरने के बाद रूहें कहाँ जाती है, मरने के बाद रूह कहाँ जाती है। लिहाजा रवायत में है कि हब्बा अल अरनी मौला कायनात के साथी सहाबी में से, एक मरतबा मौला कायनात के लिए विलायत के अंदाज में विलाई सलावात भेजे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का बहुत फ़ख्र है, हमें मुबाहत करना चाहिए कि हमारे पेशवा मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। हब्बा अल अरनी, ये अरबी इबारतें जो सुनते हैं ना बहुत अच्छा है, इसको सुनिए आप। इसलिए मैं सुनाता हूँ ताकि आपके अंदर वो रूहानी कैफियत तारी हो, और रवायत की उन इबारतों को हू बहू मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ। जब ये अरबी इबारतें रवायत को जो अरबी हैं, अरबी इबारतें इसलिए पेश करता हूँ, इसमें और सिक्का पैदा होता है, भरोसा पैदा होता है। ट्रांसलेशन करके हमने पढ़ दिया तो उसमें अलग लुत्फ़ है, लेकिन अरबी इबारत के साथ तर्जुमे के साथ जब पढ़ेंगे तो वो दिल की गहराई में, इसलिए कि ये इबारतें मामूली नहीं है, आइम्मा अलैहिस्सलाम से मासूर इबारतें हैं रवायत के ज़िम्न में। लिहाजा तबरुकन इन इबारतों को दोहराता हूँ ताकि हमारे अंदर भी वो बरकत पैदा हो और आपकी समात में भी वो बरकत पैदा हो, इसीलिए इन इबारतों को सुनाया जाता है। खरजतु मा अमीरुल मोमिनीन, मैं
मौला कायनात के साथ था। ज़ोहर का वक्त था। फ़वक़फ़ा बेबाद सलाम, मौला कायनात जब बैतुल शरफ़ से निकले तो मैं मौला कायनात के साथ था। ज़ोहर का वक्त था और मौला चलते 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 वादी सलाम पहुँचे और कअन्नहु मुखातिबुन लिअक़वाम, मौला कायनात जब वादी सलाम में पहुँचे तो गोया ऐसे जैसे मैं आपको खिताब कर रहा हूँ, उसी तरह मौला कायनात वादी सलाम में पहुँचने के बाद जो है मुखातब कर रहे हैं, गुफ्तगू करने लगे। अल्लाहु अकबर। मौला कायनात वादी सलाम में जब पहुँचे तो गोया कौमों को खिताब कर रहे हैं, मजमे को खिताब कर रहे हैं, लोगों को खिताब कर रहे हैं। तो काफ़ी देर तक मौला कायनात जो है मुखातब करते रहे, गुफ्तगू कर रहे हैं, लबों में जुम्बिश हो रही है, मगर है बज़ाहिर कोई सामने नहीं है। वो कह रहे हैं कि बज़ाहिर कोई सामने नहीं नज़र आ रहा है, मगर मौला जो है खिताब कर रहे हैं और लबों में जुम्बिश है। क्या कह रहे हैं मैं सुन तो नहीं सकता था। मैं काफ़ी देर तक मौला के पीछे खड़ा रहा, हत्ता आयैतु, यहाँ तक कि मुझे थकन का एहसास हुआ। यानी इतनी तूलानी मुद्दत तक, इतना तूलानी टाइम तक मौला वादी सलाम के किनारे खड़े होके मुखातब करते रहे। फिर जब मुझे थकन का एहसास हुआ, सुम्मा जलस, तो मैं बैठ गया। हत्ता मलल, तो फिर मुझे बैठने में बोरियत का एहसास हुआ। सुम्मा कुम, तो फिर मैं खड़ा हुआ। इतने में मौला कायनात फिर भी जो है मुखातब कर रहे थे लोगों को। अब ये कौन लोग थे मुझे नहीं मालूम। हत्ता मलल, तो फिर मैं उठा, फिर मुझे तकलीफ़ का एहसास हुआ, फिर मैं बैठ गया, थक गया। मगर मौला जो है वो खिताब कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं वादी सलाम में, बस कोई नज़र नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसा मंज़र आप देखें, अगर मैं कब्रस्तान गया और मैं बात करने लगा, तो आप बोलेंगे क्या ये कब्र में क्या है, यहाँ तो सब सो रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे दीवाना हो गया है। मगर खुदा की कसम मौला कायनात गुफ्तगू कर रहे थे। तो फिर मैंने मौला कायनात से सवाल किया, या अमीर अल मोमिनीन इन्नी कद अशफक़्तु अलैक, मेरे दिल में रहम पैदा हुआ कि आखिर मौला आप कब तक खड़े होकर इस तरह बात करेंगे। मैं तो थक रहा हूँ, बार बार थक रहा हूँ, मुझे तकलीफ़ का एहसास हो रहा है। आप अभी भी महवे गुफ्तगू है, महवे ख़िताब है, आप मुखातब कर रहे हैं, कलाम महवे कलाम है मौला। फिर मैंने क्या है अपनी रिदा को ज़मीन पर बिछा दिया। मौला बहुत देर हो गई है, अब तो ज़मीन पर बैठ जाइए, ज़रा इस्तराहत कर लीजिए, आराम कर लीजिए। तो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन बैठ गए। हब्बा बिन औरा, हब्बा अल आरानी, वो कहते हैं कि मैंने पूछा मौला आखिर ये क्या माजरा है, क्या राज है। कहा कि या हब्बा इन हुआ इल्ला मुहादसतुल मोमिन और मुआनसतहु, मैं मोमिनीन और मोमिनात की अरवाह से गुफ्तगू कर रहा था। अल्लाहु अकबर। मैं मोमिनीन और मोमिनात की अरवाह से गुफ्तगू कर रहा था और वह मुआनसतहु, और उनकी दिलजोई कर रहा था, उन्हें हौसला दे रहा था, उन्हें तसल्ली दे रहा था। कोई बात नहीं, तुम अपने रिश्तेदारों को छोड़ कर आए हो, मैं अली हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, फला जगह तुम्हारी मदद मैं करूँगा। तो अल्लाह की रहमतें याद दिला रहा था, अल्लाह की मग़फ़िरतें याद दिला रहा था। मैं मोमिनीन मोमिनात को जन्नत की बशारत दे रहा था। घबराओ नहीं, तुम आ गए हो तो बहुत अच्छा है, कामयाब हो गए। ये तमाम बातें मैं खिताब कर रहा था। तो हब्बा अल अरानी वो कहते हैं या अमीरुल मोमिनीन इन्नहुम लकज़ालिक, आप बात कर रहे थे, मगर क्या मोमिनीन की रूहें आपसे महवे गुफ्तगू थी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिस तरह आप बात कर रहे थे क्या वो भी बात कर रहे थे। तो मौला ने फरमाया जैसे मैं खिताब कर रहा था वैसी मोमिनीन और मोमिनात की रूहें मुझसे मुखातब थी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, इससे बड़ा शरफ और क्या मिलेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो मौला ने फरमाया या अमीरुल मोमिनीन इन्नहुम लकज़ालिक, आप बात कर रहे थे वो भी ऐसी बात कर रहे थे। कहा कि हाँ बेशक। तो
हब्बाल आरानी ने कहा नाम वलाउ कशफ लकल रायतहुम, अगर तुम्हारे आंखों पर से असरार और रुमूस के पर्दे हट जाते तो मोमिनीन और मोमिनात की रूहों को देखते ग्रोह दर ग्रोह वो आपस में खड़े हुए एक दूसरे से महवे कलाम है, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। अगर आसमां तुम्हारे आंखों पर से ये पर्दे हट जाते तो मौला ने फिर उसने पूछा मौला ये जिस्म है या रूह? तो मौला ने फरमाया ये रूहें हैं, उनका जिस्म नहीं है। फिर मौला ने फरमाया अरवाहोन मामिन मोमिनीन, ये बहुत ही रवायत का मेन पॉइंट है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ। मामिन, मौला फरमाते हैं मामिन मोमिनीन यमूतु फी बुक़अतिन मिन बक़ाइल अर्ज़, रूए ज़मीन पर कहीं भी किसी भी गोशे में अकनाफ अतराफ आलम में कहीं भी कोई मोमिन मोमिना मरती है तो उसकी रूह को मुखातब करके कहा जाता है पहुंचो वादी उस सलाम में, इसलिए कि वादी उस सलाम जन्नत का एक टुकड़ा है। सलावत पढ़े मोहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और इससे बढ़कर एडवांटेज हमें क्या चाहिए? मोमिन कभी मौत से खाइफ नहीं होता, मोमिन कभी मौत से घबराता नहीं। आइए एक मोमिना के सुबूम की मजलिस है, और आम तौर से सुबूम की मजलिस में किसी मोमिना के सिलसिले में पढ़ा जाता है कि नेचुरल है कि अगर इंसान के जिस्म में एक हड्डी शिकस्ता हो जाए तो उसे तकलीफ़ होती है, हर लम्हा हर सांस पर उसे तकलीफ़ का एहसास होता है। एक हड्डी अगर शिकस्ता हो आपकी बॉडी में तो सांस जैसे जैसे आप लेंगे हर सांस पे आपको तकलीफ़ और अज़ियत का एहसास होगा। अगर सोचिए रसूल की उस बेटी के मुताल्लिक़ से एक हड्डी शिकस्ता नहीं थी, पसलियां टूट गई थी, और इस हादसे के बाद रवायत के जुमले हैं, मुख्तसर तरीन रवायत तो ये है कि 70 दिन, और एक रवायत के मुताबिक ये है कि 90 दिन। सोचिए 90 दिन तक जितनी सांसें जितनी बार शहजादी ने ली होंगी हर सांस पे तकलीफ का एहसास हुआ हो। ये 90 दिन की मुद्दत शहजादी ने, और उसमें जुल्म और सितम अलग हर सांस पे। इसीलिए शहजादी ने फरमाया सुब्बत अलैया मसाहिबुल लौ अन्ना सुब्बत अलैया में सिर न लया लिया। है बाबा, आपके बाद मुझ पर वो मसाइब पड़े, अगर दिन के उजाले में पड़ते तो रात की तारीकी। वो फातिमा जिसे रसूल बहुत चाहते थे, जिससे मोहब्बत करते थे, जिसे बहुत प्यार करते थे, जब कहीं जाते थे तो आखिर में सबसे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मुलाकात करते थे। जब सफ़र से वापस होते तो सबसे पहले फातिमा से मिलते थे, और रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा तो बज़तुम मिन्नी मन अज़ाहा फ़क़त आज़ानी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी, और जिसने अल्लाह को अज़ियत दी वो कुफ्र इख्तियार कर गया। अज़ीज़ो फातिमा ज़हरा पर इतने मसाइब पड़े कि चलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया, पसलियाँ शिकस्ता हुई, शिकम में मोहसिन की शहादत वाक़ हुई। फातिमा के लिए इसका बड़ा मसाइब ये था कि फातिमा के सामने अली के गले में रस्सी का फंदा डाला गया, कशा कशा फिराया गया। असीज़ो फातिमा पर उससे ज़्यादा मुसीबत ये थी कि फातिमा तो ज़हरा जब जब अपने बाबा को याद करके रोती थी तो लोग एतराज़ किया करते थे, ऐ अली फातिमा से कह दीजिए रोने के लिए एक वक्त मुकर्रर कर ले। मगर अजीज़ो मैं शहज़ादी की खिदमत में दस्ते अदब जोड़ कर अर्ज़ करूँगा, ए बीबी आपने हक़ गिरिया अदा किया, बाप पर रोने के एवज़ में किसी ने आपके रुखसार पे तमाचे नहीं मारे, ताज़ियाने नहीं बरसाए, मगर ए शहज़ादी एक 4 साला बच्ची है, जब जब अपने बाबा को याद करके रोती है, अरे तमाचे रुखसार पर, कानों से बूंदे छिड़े जाते हैं, ताज़ियाने बरसाए जाते हैं, सकीना की फरियाद, ए चचा अब्बास जालिमों की अज़ियत से। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लबन यनक़लिबून।
बार इलाहा इस इबादत कलील को कबूल फरमा। हमारे दरमियान जो मरीज़ आबिद बीमार का वास्ता शिफाए आजिला कामिला अता फरमा। जो मकरूज़ है गैब से कर्ज़ अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मरहुमा के तमाम गुनाहान कबीरा गुनाहान सगीरा को बख्श देना। परवरदिगारा इस मजलिस के सवाब को उनकी रूह को इसाल फरमा। परवरदिगारा उनके कब्र पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। कब्र की वहशतनाकियों और हौलनाकियों से उन्हें महफूज रखना। वहशत कब्र से उन्हें महफूज रखना। परवरदिगारा वहशत कब्र और कब्र की तन्हाई से उन्हें महफूज रखना। परवरदिगारा तुझे वास्ता है हमें कोई गम न देना सवाए गम हुसैन के। परचम इस्लाम को इज़्ज़त और बुलंदी और शरफ अता फरमा। दुश्मनान इस्लाम बिलखुसूस अमरीका इसराइल को ज़लील व ख़ार फरमा। यूसुफ़ ज़हरा पर्दा ग़ैब रहने वाले इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके नासिर अवान में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह हम्द 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा इशरत जहाँ बिनते अहमद अली मरहूम की रूह को ईसाल सवाब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।